नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon. For a creator, your subscription, likes and comments are the motivation. So this is a pre-market report video for 15 December 2025, that is for Monday. Friends, we are going to cover F1 analysis, post-market analysis, chart review, top gainers, losses, technical view and outlook for Monday, pre-market review and levels for Monday as well. So needless to say, we are going to cover everything in this video, including the global and local cues as well. Let us start from our review for last trading day. That was on 12th December 2025. Let us review and understand what happened in our market on last Friday. So if you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap, everywhere you can see greenery. So, and this was expected. Moreover, the FNO data was also positive. Let us go and understand the details from the charts, then we'll come back here. Yeah, friends, we are in Nifty chart. This is a 5 minute chart of Nifty. And if you look in the charts, you can see that, okay, so Nifty opened a gap up, and from there it moved up to 26,000. And after that, a dip happened to the yesterday's high, and again once again it started moved up, and finally it closed at 2646 level. So I would say this was a good market, because after the initial up move and down move, thereafter it was on a more or less on a sideways market, and it was completely in a premium eating mode. And let us understand, okay, what are our levels for Monday. So market is in bullish momentum. So if Nifty cross above 2660, then consider a long. So you can get targets up to 26,150, even up to 200. So it is all because short covering can happen if Nifty can cross above 26,150. And for shorts, it is below 26,000 only. Consider shorts. You can get target up to 25,940, 950. If you look here in the Bank Nifty also it is in bullish momentum, and don't short Bank Nifty till the time Bank Nifty is holding above 59,200. Okay, so a scalping short can be considered the moment Bank Nifty breaks below 59,350. You can get at 100 points you will get. Till the time Bank Nifty is holding 59,000, so don't go for aggressive shorts, and keep the EMA. If it is breaking below 20 EMA and 50 EMA, then you consider shorts. Sensex, if you look here, Sensex is in clear bullish momentum. So don't short Sensex till the time it is holding above 20 EMA. So if you wanted to short Sensex, you can consider for short around 85,250. You'll get target up to 85,000. And for longs, you can do it above 300. Yeah, I mean, go better. Say, players go after 350. 85, 350. You'll get target up to 85, 500 and 85, 700 level. Keep this EMS and watch on that. Mid cap Nifty is also in bullish momentum, and don't short mid cap Nifty till the time it is holding about 20 EMA. और कोई इसमें कोई फंडा है नहीं है. जब तक ये 13,880 के नीचे नहीं जाते, इसमें ज़्यादा टारगेट नहीं मिल सकते. लॉन्ग के लिए 13,920 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना. तो अगर निफ्टी एक बार जो मिड कैप निफ्टी एक बार 13,850 लेवल तोड़ दिया, तो अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं. इंडिया विक्स में चलते हैं. सबसे ज़्यादा गेम हो रही है इंडिया विक्स में. इंडिया विक्स देखो पाताल में गिरा दिया. यहाँ से जो 10.1 लेवल पे कौन इसको सेल करने जाएगा, इंडेक्स का कौन इसमें बाई कर रहा है. अगर बाई आप कर भी लिया, आपका डायरेक्शन में मूव आ भी गया, तो प्रीमियम कुछ बढ़ने वाला है नहीं है. तो ऑप्शन बायर्स के लिए और ऑप्शन सेलर्स के लिए दिक्कत है. तो मेरे हिसाब से ये आने चाहिए
कुछ 12-13 तक आने चाहिए, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। मेरे मेरे हिसाब से जो निफ्टी की एक्सपायरी तक ये 11-12 तक आ जाना चाहिए। अभी भी क्या है, हमारा ट्रेड डील का अनसर्टेनिटी जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आते उड़ना चाहिए। जो ट्रेड डील अनसर्टेनिटी, जो भी अनसर्टेनिटी बने रहते हैं वोलेटिलिटी इंडिकेट करते हैं। अभी हमारे मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं है, हमारा रुपये में इतना बड़ा वीकनेस है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इंडेक्स नीचे जा रहे हैं। चलिए हम अपना एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जाने से पहले, चार्ट पे जाने से पहले हमारा रुपये का कंडीशन देख लो। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये अफगान डॉलर है, ये अफगान रुपये, सॉरी अफगान रुपये डॉलर के अगेंस्ट में 66 का रेंज में चल रहे हैं, और हमारा चल रहा है इंडिया का। मैं अभी सिलेक्ट करूँ, यही हाल है। तो सोच सकते हैं दैट मीन्स अफगान रुपये इज स्ट्रॉन्गर देन इंडियन रुपये। अगर मान लो एक अफगान रुपये खरीदने के लिए हमें 1.36 इंडियन रुपीस चाहिए, तो यही कंडीशन है। अफगानिस्तान हाल हम सबको पता ही है। हम बोल रहे हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारा करेंसी का कंडीशन देख लो भाई। इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग आएगा ज्ञान देने और वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा जो गिरते हुए रुपये में हमारा एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कॉमन सेंस जिसके पास है उनको पता ही चलेगा एक कंट्री का रुपये जब गिर जाते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जब ट्रेड डील आ जाएगा हमारा करेंसी में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए। चलो हम अपना शीट पे वापस आया। जब तक ये जो करेंसी में स्ट्रेंथ नहीं आते, बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर पड़ने वाले हैं। मेटल के ऊपर भी प्रेशर पड़ना चाहिए था, लेकिन क्या मेटल में क्या हो रहा है अभी, कुछ बातें चल रहे हैं कि चाइना उनका कुछ स्टिमुलस लाने वाले है, तो उसी का उम्मीद में हमारा मेटल स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। लेकिन ये रैली ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो इसमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। तो क्रूड में क्या है, कुछ हलचल चल रहा है क्रूड में। क्या कुछ यूएस और वेनेजुएला का टेंशन रहेगा कारण क्रूड में अभी क्या है अनसर्टेनिटी चल रहा है। अगर मान लो कुछ और मामला गड़बड़ हो जाता है, क्रूड में एक अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और गोल्ड में क्या है पागलपन चल रहा है, लेकिन आखिर पागलपन ऊपर से थोड़ा बहुत टूट गया। गोल्ड एक टाइम ऐसा था तो 2% तक ऊपर था, वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ। तो सिल्वर में अच्छा खासा डिप आ गया। सिल्वर एक टाइम था ये 2 लाख के ऊपर चल रहा था, वहाँ से कुछ 8000 पॉइंट्स का गिरावट है, लेकिन इसको गिरावट नहीं कैसा है, हल्का सा डिप है। तो और भी ये ऊपर जा सकते हैं। अभी क्या है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का हेवी बाइंग डिमांड है, लाखों क्वांटिटी में, लाखों किलो में बाइंग के लिए पड़ा हुआ है। Yeah, some important data. Last Friday, you can see our CPI data came. This came as per the expectations. So अच्छा बात है कि और ये नेगेटिव में नहीं गिरा, तो ये अच्छा बात है। और फॉरेक्स रिजर्व वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बढ़कर आया, वो भी ठीक है। तो मंडे के लिए दो महत्वपूर्ण डाटा है। तो एक है WPI इन्फ्लेशन आएगा हमारा, वो 12 बजे तक आ जाएगा। इसके ऊपर ध्यान रखना, इसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा। एक्सपेक्टेशन है -60 है, अगर इससे बढ़कर आ गया तो क्या है ये मार्केट रिएक्शन देगा, तो इसके ऊपर नज़र रख लेना। और हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद ट्रेड बैलेंस का भी डाटा आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट डाटा है। इसके ऊपर मार्केट निफ्टी का एक्सपायरी में रिएक्शन दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण डाटा है कि अभी क्या कुछ बातें चल रहे, बैंक ऑफ जापान इज प्लानिंग टू इंक्रीज 25 basis point rate hike, and that can happen during the 18-19 of their central bank meeting. If this is implemented and जापान इसका ये 1995 के बाद सबसे बड़ा रेट इंक्रीज जापान की तरफ से होगा। अगर ये हो गया तो क्या है ग्लोबली लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन सब इतना लो इंटरेस्ट में जापान से लोन लेके बाकी दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट और जो क्रिप्टो इवन एसेट क्लासेस गोल्ड सिल्वर सब में इन्वेस्ट कर रहा था, तो लिक्विडिटी क्रंच आ सकते हैं। तो देखते रहना, अगर जापान इंक्रीज किया, रेट इंक्रीज किया, ग्लोबली एक टर्मोइल क्रिएट हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं। Let us also look at the F&O data. So those who are new to this channel, I'll quickly explain how to read this data. So
Thursday means last to last trading day. Friday means last trading day. Total means what positions carried by the market participants, retailers, DIA, FA and pros for Monday. चलिए हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखें तो ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है, एफ एंड प्रोस दोनों इंडेक्स फ्यूचर सेल करते जा रहे हैं। और एफ का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट पहुंच गया 1.5 लाख। ये बहुत बड़ा नंबर है, मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और रहा बात लॉन्ग के लिए, रिटेलर सबसे बड़ा लॉन्ग लेके खड़ा हुआ 1 लाख के पास। तो दिस डाटा इज क्लियरली बेयरिश डाटा। इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर और कुछ सेल करते जा रहे हैं अराउंड 43,000। उसके चलते उसका नेट लॉन्ग्स घटते हुए पहुंच गया 7,000। And FA they purchased 49,000 contracts, and they've converted from net short to net long. This is positive for market. Pros ने कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 26,000. This data is mixed to bullish. So if you look at the option chain, you can see pros are the call shorters and FA are the call buyers. इसलिए क्या है, टग ऑफ वार चल रहा है। 26,000 को हम लोगों ने देखा था कितना बार कोशिश किया तोड़ने के लिए, और जितना भी हायर लेवल्स पे ये शॉर्ट करके रखा है, ये पूरा ये प्रोस का शॉर्टिंग है। अगर प्रोस जब तक ये शॉर्ट क्लियर नहीं करते, मार्केट को ये ऊपर जाने नहीं देगा। चलिए इंडेक्स पुट का डाटा हम लोग देखें तो इंडेक्स पुट में भी रिटेलर 25,000 करीब लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका 3.33 लाख इंडेक्स पुट शॉर्ट है। एफ ए 16,000 राइट कर दिया, प्रोस भी 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट कर। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। And if you look at the stock futures data, here also I am seeing FA added their longs further, but pros sold 22,000, but still they are holding decent quantity in long. This data is mixed bullish. In stock also, retailers shorted some stock calls. This is a good indication, but still they are holding around 8.78 lakhs of स्टॉक कॉल्स। इसके चलते क्या हो सकता है, बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई देखने अभी बाकी है। तो एफ एंड प्रोस ये लॉन्ग लेके जा रहे हैं। सो दिस डाटा इज बुलिश फॉर मंडे। स्टॉक पुट में भी रिटेलर कुछ पुट लॉन्ग ऐड कर दिया, एंड एफ एंड प्रोस ये बुलिश पोजिशन से लेकर शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो दिस डाटा इज ऑल्सो बुलिश। सो ओवरऑल इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, रिटेलर्स आर मिक्स्ड टू बेयरिश इन index options and stock options. FA and pros mixed to bullish in index and stock options. तो यहाँ क्या है, FA ज़्यादातर आप लोग देखेंगे तो बुलिश दिख रहे, प्रोस थोड़ा बहुत बेयरिश है इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक में वो लोग बुलिश है। कैश मार्केट का डाटा देखेगा तो DA ने 3,869 करोड़ का बाइंग किया, FA ने 1,114 करोड़ का सेलिंग किया है। बाकी जितना में सेलिंग है ये रिटेलर और प्रोस का लग रहा है। टॉप गेनर्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैंने बोला स्पेशली मेटल स्टॉक्स, क्योंकि चाइनीज स्टिमुलस आना वाला है, इसी की उम्मीद में मेटल स्टॉक्स रैली कर रहा है। लेकिन क्या है, मेटल स्टॉक्स में और बेट नहीं करना है, क्योंकि कभी भी ये गिर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। तो बाकी जितना वॉल्यूम स्टॉक्स आप चेक करते जाना, अगर मान लो इसमें कोई भी डिप आते चाहे तो आप बाई कर सकते हैं, देख कर खेल लेना। तो और टॉप लॉसर में हम लोग देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स है नहीं है। एशियन पेंट्स वगैरह है, मान लो एशियन पेंट्स में अभी ओवर शॉर्टिंग नहीं करना, मान लो इसमें ओवर डिप आते यू कैन कंसिडर इट एज फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आईटी स्टॉक्स को आप छोड़ देना, आईटी स्टॉक्स में कोई भी आप मोमेंटम आप मूव आते सेलिंग है नजर, आप इसको कंसिडर कर लेना, बाकी वॉल्यूम्स चेक करते जाना। एंड फाइनली और टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर मंडे। तो निफ्टी में शॉर्ट्स ओनली बिलो 26,000, यू कैन गेट टारगेट अप टू 25,950 फॉलोड बाय 25,880। मेजर सपोर्ट 25,900 जब तक होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 2660 के ऊपर लॉन्ग करना, आपको फर्स्ट टारगेट 26,110 फॉलोड बाय 26,170 तक मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक 26,000 होल्ड है, इसमें शॉर्ट्स अवॉइड करना। पीसीआर इसका अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है 59,350 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट 200 फॉलोड बाय 59,50 तक आपको मिल सकते हैं।
जब तक 59,000 होल्ड है इसमें अग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग के लिए 59,400 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, 550 फॉलोड बाय 700 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो शॉर्ट जब तक ये 59,200 के ऊपर है शॉर्ट अवॉइड करना ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा वीकनेस का कारण बनेगा हमारा रुपी का वीकनेस। तो देखते रहो, अगर रुपी और वीक हो गए तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। पीसीआर अच्छा दिख रहा है अभी भी। सेंसेक्स में 85,250 के नीचे शॉर्ट करना, आपको इवन 84,800 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो मंडे का हो सकता है आईटी का जो प्रेशर है, अगर बैंक इसमें इक्वलाइज नहीं किया तो गिरावट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,300 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, तो आपको 85,700 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 85,000 होल्ड है इसमें ज़्यादा शॉर्ट करना नहीं। पीसीआर अच्छा दिख रहा है। मिड कैप में 39,900 है, मेक और ब्रेक लेवल अगर एक बार 39,900 टूट गया आपको फर्स्ट टारगेट 860 फॉलोड बाय 800 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 920 के ऊपर ही लॉन्ग सोचना, आपको 14,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। अगर एक बार 13,850 तोड़ दिया तो इसको बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। पीसीआर अभी भी अच्छा दिख रहा है। तो मेरा व्यू मंडे जो रुपी वीकनेस कैन पुट प्रेशर ऑन बैंक निफ्टी एंड मेटल्स। इफ यूएस जो 25% एडिशनल टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है जो रशियन ऑयल का परचेज करते हुए, अगर वो निकल गया तो रुपये में थोड़ा वो स्ट्रेंथ आ सकता है। पता नहीं कब आएगा, अगर आ गया तो ये पॉजिटिव होगा हमारे मार्केट के लिए। मेरा व्यू है कॉशियसली बुलिश, एज करंट मार्केट ट्रेंड इज इन बुलिश मोमेंटम। वो ग्लोबल मार्केट मान लो अगर नेगेटिविटी आ गया तो स्पॉइलर काम करेगा, साइडवेज फिर चला जाएगा। Strategy go with the market trend. Weakness below 26,000 only. FNO data indicate up momentum continuation. Yeah, let's also look at the global futures as well. If you look at the US market low, US market close in deep, right? And Nasdaq fallen like anything. Even Dow also close 200 points on the downside. Gift net is indicating 100 plus points gap down. But if Monday US futures are recovering, then Gift Nifty can also recover. So trade accordingly. That's all in this video, guys. If you like my channel, please subscribe to my channel and like the video. Also add your comments. Thank you.